Okay, ji. So first of all, we have to draw the diagram. Some cables are supported by vertical post, a post, vertical post. So let me draw vertical post first. So this is the vertical post and its height is 47 meter. So it is 47 meter. Sorry, I have to pick this pen. 47 meter. It is in meter, okay? And the cable are attached from the top of the post to a point on level ground. So level ground is this. This is the level ground. कुछ केबल्स लगी हुई हैं यहाँ पर. वो कैसी केबल्स हैं? वो लगी हुई है, केबल है वो इसके टॉप के साथ लगी हुई है, पोल के टॉप के साथ, और यहाँ पर जुड़ी हुई है, ठीक, केबल. तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोस्ट टू द पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड. तो जो लेवल ग्राउंड पे जो पॉइंट है ना, जो लेवल ग्राउंड पे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, ये क्या, 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट. ये इसका फुट है, पोस्ट का फुट ये है, यहां से यहां तक 18 मीटर है. ओके जी. आप क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच केबल. इस केबल की लेंथ निकालनी है, तो इसको एक्स कहते थे, एक्स. तो चले करें सॉल्व को, एंड डू लेट मी नो के व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल. प्लीज सॉल्व दिस. वी विल अप्लाई Pythagoras and we know that this angle is 90. Okay, or the side which is opposite to 90 is hypotenuse. So the formula is hypotenuse square is equal to 47 square plus 18 square. Okay, so 2533. और जब हाइपोटेन्यूज ये h स्क्वायर है, इसका फिर हम अंडर रूट भी ले लेंगे, तो आंसर कितना आता है इसका? 2533. 2533. जी सर. और व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? 2533. Sir, 2533. Okay, thank you. So what is the square root of this? 50.3. So 50.3. So the length of cable is 50.3 और साथ यूनिट भी लिखनी है, मीटर. So this is the answer. Manahil, Sayyida Manahil Lakvi, can you read this question? Question number 2. Acha sir, each side of a square field is 50 meter long. A barricade is to be placed along the diagonal of the field. Find the length of the barricade. Thank you so much. So first of all we have to draw the diagram. ठीक हो गया जी? Sir, I have a question. Exam में इस time First of all, each side of a square field. Look here, it is square field. So let me draw a square field. A square field. This is a square field, 50 meter long. The length is 50 meter. So it is, every side is 50 meter long. 50 meter long side. Okay, 50, 50, 50 everywhere. All the four sides are 50. A barricade is to be placed along the diagonal of the field. So we have to place the barricade along the diagonal. It is along the diagonal. So this is the barricade along the diagonal of the field. So this is along. So I have drawn just one diagonal. So no need to draw the second diagonal because स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल्स जो होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है. मैंने अभी एक ही ड्रॉ किया है, तो देखते हैं, लेट्स सी. तो एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया. फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड.
तो बैराकेड की लेंथ बतानी है, तो अलोंग द डायगोनल चले। अब बैराकेड की तो देखिए गर्ल्स, दिस अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज जो स्क्वायर होता है उसके एंगल 90 होते हैं, तो वी विल यूज दिस एंड वी विल फाइंड दिस, और 90 के जो ऑपोजिट साइड्स है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो चलें इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करें। प्लीज फाइंड दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, करें फाइंड। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाँ अब हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट। तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर आप एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो फिर अंडर रूट आएगा, फिर स्क्वायर रूट आएगा। 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द आंसर? 5000. और व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5000? What is the square root of 5000? It's, wait, sir. 70.7. Sir, it's 70.7. जी 70.7। So this length is 70.7 meter. Okay. What we have to find? We have to find the length of the barricade. A barricade is to be placed along the diagonal of the field. तो अगर अब हमें मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि आप उसने दोनों डायगोनल्स पे पुट किए कि, तो the length, total length of the barricade is on one if it is on one diagonal it is 70.7 meter. If it is also on the second diagonal तो फिर 70.7 plus 70.7 करेंगे। अभी बस ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट है, इट इज ओके। ठीक, Isba Parvez, can you read question number 3? Yes, sir. A rectangular swimming pool has a length of 50 meter and a breadth of 30 meter. ये कहाँ चला गया भाई? Read now. A rectangular swimming pool has a length of 50 meter and a breadth of 30 meter. During a swimming proficiency test, Ethan has to swim from one corner of the pool to the opposite corner. Find the distance Ethan has to swim. Thank you. So it is a rectangular. It is a rectangular swimming pool. So I have drawn rectangle here, and length is 50, and the breadth is 30. So it is 50 meter length, and breadth is 30 meter. Okay, ji. Swimming test is going on. Ethan, one corner of the pool to the opposite. Okay, find the distance Ethan has swimmed. क्या पता वन कौन सा कॉर्नर की बात कर रहा है, तो and so we are not sure कि what is the opposite corner right now, na? So the question is not clear. Find the distance Ethan has to swim. So if it is, अब हमें नहीं पता किसको ऑपोजिट कॉर्नर कह रहा है वो ना, तो अगर हम यूं कर लेते हैं कि एक ये वाला कॉर्नर है और ये वाला ऑपोजिट है, इसको ले लेते हैं, तो फिर टोटल लेंथ कितनी आएगी? ओके, सो अगेन वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये भी 30 है तो ये भी 30 है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सेम है, तो किसी एक को ले लो, ये 50 है तो ये भी 50 है, तो जिस मर्जी को ले लो, किसी एक को लेके ना आप इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो। हम ये ले लेते हैं, तो इसके सामने जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, तो यू कैन डू इट। तो ये लोग आप इसको अभी जल्दी से कर लो।
और हम अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Sir, 30 लिखा हुआ है। 58.3 है, ठीक है जी, Yes. गुड, थैंक यू सो मच, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये इसकी लेंथ है, वेरी इजी क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन सच क्वेश्चन जस्ट ड्राइंग द डायग्राम। अगर आपने डायग्राम ठीक बना लिया तो क्वेश्चन तो वैसे ही होता है जो हमने पहले कर लिए, तो वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 4, इस बार प्लीज क्वेश्चन 4 पढ़ो जरा, रीड क्वेश्चन नंबर 4 A बेटा। ladder of length 5 meter is placed against a vertical wall with its foot 1.8 meters away from the base of the wall. How far up the wall does the ladder reach? थैंक यू जी, थैंक यू। सो इसमें एक हमारे पास वॉल है, वो हम क्या करेंगे, वॉल को हम वर्टिकल लाइन से शो करेंगे कि ये हमारे पास वॉल है, ठीक है। और ये वॉल कहाँ पर होती है, ये सॉरी वॉल है, इसके नीचे ग्राउंड भी होएगा, एक इसका ग्राउंड पे होती है वॉल, ये ग्राउंड भी बना लिया हमने, ठीक है। अब इसके साथ एक हम लैडर लगी हुई है, लैडर सीढ़ी को कहते हैं, तो सीढ़ी बना लेते हैं। यहाँ पर एक सीढ़ी है जो यहाँ से ऊपर तक गई हुई है, ये लैडर है हमारी, ठीक है। तो अ लैडर की द लेंथ ऑफ द लैडर इज 5 मीटर, सो दिस इज 5 मीटर, ओके। एंड against a vertical wall with a foot 1.5 meter away from the base of the wall। तो ये जो इसका फुट है ना, लैडर का जो फुट है वो दीवार की जो बेस है, वॉल की जो बेस है उससे 1.8 मीटर है, तो ये वाला 1.8 मीटर है। तो यू हैव टू रीड द So क्वेश्चन। ये पर्पल लाइन वॉल है। जी ये पर्पल लाइन वॉल है, और ये पर्पल लाइन जो नीचे है हॉरिजॉन्टल लाइन ये ग्राउंड है, और ये ब्लू लाइन जो है लैडर है। तो अगेन हमने क्या बताना है, हाउ फार फ्रॉम द वॉल डज द लैडर रीच है। तो ए वर्टिकल वॉल विद फुट with which is foot 1.8 meter away from the base of the wall, how far the wall does the ladder। हमने वॉल की जिस वो ढूंढनी है। हाँ ये जो लैडर है ना, ये वॉल के बेस से कितना ऊपर तक गई हुई है, तो ये आपने ये निकाला। अगेन पैथागोरस, राइट एंगल ट्राइंगल है, पैथागोरस लगाएंगे। अब इसमें हमने ना हाइपोटेन्यूज नहीं फाइंड करना, तो आपने ये इसको एच नहीं को, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो उसको कुछ एक्स कह दो, ठीक है। तो आपने अब हाइपोटेन्यूज नहीं फाइंड करना, तो फिर क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे इस वाले को 1.8 के स्क्वायर को, और ऊपर स्क्वायर रूट पे लेंगे। तो इसको सॉल्व करें, बताएं क्या आंसर है। इंशाल्लाह आपको याद है ये कि हमने जो भी मैंने अब कल बताया आपको, आई टोल्ड यू यस्टरडे के द लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम दे मस्ट बी राउंड अप टू 3 significant figure। If you don't round them up to 3 significant figure, you may lose 1 mark। This is very important for Cambridge examination। तो चलें इसको करें, and we will going to further the next question। Read question 5। Mr. Lee buys a 30-inch television. The height of the screen is 18 inches. Given that the television screen and measures across the diagonal, i.e. the length of the diagonal is 30 inches, how wide is the screen? Read question number 6। Okay, sir. Two vehicle buildings of height 30 meters and 37 meters and are 16 meters apart. A cable is pulled or torn and attached from the top of one building to the top of the other building. Find the length of the cable. This is very good question। Yes, I like this. This is good question। So look here, we have 2 buildings. So let me draw this diagram again। This is one building, and this is the level ground, and this is the second building, okay। So and there's a level ground, this is the level ground, and there's a rope, there's a cable, and cable is taut means the cable is tight। दिस इज नॉट लूज केबल, ढीली केबल नहीं है, टाइट खींच के बांधी हुई है, ठीक है। केबल के लिए लेट मी यूज रेड कलर।
this is the cable over here which is joined at the top of the buildings. This is the cable. And one more thing that the information is given here, the distance between the two buildings is they are 16 मीटर अपार्ट. उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर का है. तो बेटा ना आप एक काम कर लो ना कि आप देखिए हमने ट्रायंगल बनानी है ना, हमने ट्रायंगल बनानी है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम ना एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ, यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक हो गया. अब ये रेक्टेंगल बन गई है. तो रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. अगर ये 16 है तो ये भी 16 होएगा. ठीक हो गया. और यहां पर 90 डिग्री एंगल है. अच्छा, और जो बात इसने बताई है वो ये बताई है कि ये 37 मीटर ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग 37 मीटर टॉल है. इसकी लेंथ 37 मीटर है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये 37 है. ठीक है. और जो दूसरी बिल्डिंग है वो 30 मीटर है. इसकी लेंथ यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 30 मीटर है. ठीक हो गया. ये 30 है. तो अब मुझे कौन बताएगा ये लेंथ कितनी होएगी ये वाली? सर हम लोग करेंगे 37 माइनस 7. यस, 37 में से 30 निकालेंगे तो 7 मीटर होएगी. बिल्कुल ठीक है. ठीक है ना. तो इसको मैं 7 लिख लेता हूं. ये लेंथ 7 मीटर होगी. 7 मीटर. अब हमने बताना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल. तो बस पिथागोरस लगाएंगे. इस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पिथागोरस लगाएंगे. तो प्लीज करें पिथागोरस. तो बताएं कि इसका आंसर 17.5. 17.4. 7. माशाल्लाह बड़े तेज हो गए आप लोग. 17.4 जो ये 3, ये ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो ये हमारा फाइनल आंसर. सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम करेक्टली. और आपने सम टाइम क्या होता है, दो बिल्डिंग्स होती हैं, एक बड़ी होती है छोटी है. तो उन दोनों से आपने निकालना कि उनका डिफरेंस कितना होता है. ठीक है ना. तो डिफरेंस कितना, 30. तो ये आपको पता होना चाहिए. और ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये साइड 16 है, इसके ऑपोजिट साइड अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी 16 होगी. तो उसको ड्रॉ करने से हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है. तो इस तरह के क्वेश्चन ना मैं टेस्ट में दूंगा. आई विल गिव यू सच क्वेश्चन इन द टेस्ट. जो आई विल अनाउंस दिस टेस्ट. तो चलें, वी हैव डन बेसिक. का दोबारा पढ़ो क्वेश्चन 7 पढ़े बेटा. Devi folded a sheet of paper into an envelope as shown in the figure. In the figure, the triangle AED is equals to ADB is equals to BCD is equals to 90 degree. To seal the envelope, she has to apply glue along AD and DB. Given that AE is ED is equals to 8 centimeter and DC is BC is equals to 14 centimeter, find the total length of the sides along which the glue has to be applied to seal the envelope. Mashallah, mashallah. It is very a full paragraph question. It's a full paragraph question. तो मुझे I realized today कि ये देखो, ये this is a question of art and design. वो हमारी मैम है, वो ना हमारे स्कूल में मैम है, तो वो she is teaching art and design. She told me कि there is mathematics involved in that subject as well. तो देखिए ना, maths is everywhere. तो हमने कोई envelope बनाना है तो उसने ये बताया. तो देवी folded sheet of paper into an envelope. तो इसमें कुछ इसने बताया हुआ है कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं. ये 90 एंगल, 3 एंगल 90 हैं. ये मेंशन हुआ है. देखो एक एंगल ये 90 बना हुआ है. सॉरी इसको मैं यहाँ, एक 90 एंगल यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है. 3 एंगल 90 है. इसने क्वेश्चन में मेंशन किया. अब कहता है अगर इस लिफाफे को बंद करना हो तो इसने ग्लू लगाई है AD और BD पर. यहाँ पर इसने ग्लू लगाई है इस जगह पर और इस जगह पर ग्लू, इसके नीचे ग्लू लगा के इसने बंद कर दिया यहाँ पे. ठीक हो गया. अच्छा, अब देन व्हाट हैपन, वो कहता है ये साइड्स इक्वल है. ये देखो AE और ED, ये देखे इसने यहाँ साइन लगाया हुआ है, इसे साइन पुट किया हुआ है. ये छोटा सा लाइन, ये वाला लाइन और ये लाइन.
व्हाट डज इट मीन? ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, लिख लो साथ साथ इसके 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप देखो इसने यहां भी लगाया हुआ है, ये देखो यहां पर भी लगाया है, ये कि ये दो साइड्स भी इक्वल है, ये दो भी इक्वल है। तो आप इसके साथ लिख दो, अगर ये 14 है तो ये भी 14 है, ठीक हो गया। तो इट मीन्स दैट ये जो लिफाफा है इसकी पूरी साइड ये जो 14 प्लस 8 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक हो गया। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग विच द ग्लू हैज टू बी अप्लाइड। तो हमने ग्लू कहाँ अप्लाई की है, मैं उसको कलर कर देता हूँ। हमने ग्लू जो अप्लाई की है उसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ, रेड में ना, उसका रेड कलर करता हूँ। तो हमने ग्लू इधर अप्लाई की है और हमने इधर भी अप्लाई की है। तो वो कहता है इसकी लेंथ कितनी बनती है, ये लेंथ बताओ। तो बेटा ये तो थोड़ा सा सोचो, इसको कैसे करेंगे। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी हेल्प से ये वाली लेंथ निकाल देंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में करना, ठीक है। कोई बहुत इजी है, होमवर्क में कर लेना, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन, लेट्स रीड क्वेश्चन। जी बेटा पढ़े आप। A table coaster in the shape of a rhombus has diagonals of lengths 10 cm and 24 cm. Find the length of each side of the coaster. Okay, thank you so much. अच्छा, first of all, you should know what is rhombus. Do you know what is rhombus? It's a shape. Yeah, it's a shape, obviously. It's a square which has like tilted जैसे होती है। Exactly. A square which is tilted square. तो अब स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती है, तो रम्बस की भी सारी साइडें इक्वल होंगी ना। आपने ना, अगर एक बुक है ना वो खड़ी है, उसको थोड़ा टिल्ट करो तो क्या बुक की लेंथ चेंज हो जाएगी? बुक की लेंथ तो नहीं चेंज होगी ना, वो तो उसकी लेंथ बस आपने साथ टिल्ट ही किया ना। जैसे आप लोग खड़े हैं, सीधा खड़े हैं, आप थोड़ा सा दीवार के साथ टिल्ट हो जाए तो आपकी लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना। अगर आपकी 5 फीट है, अगर आपकी 5 फीट हाइट है तो आप टिल्ट भी हो जाए तो भी 5 फीट रहेगी ना। तो रम्बस की भी यही बात होती है। मैं आपको रम्बस ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो रम्बस में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये हो गया और ये हो गया। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अच्छी एक्यूरेट रम्बस ड्रॉ हो जाए। तो आई थिंक इट्स गुड रम्बस। सो a table coaster is in the shape of this. तो डायगनल जो है ना वो 10 सेंटीमीटर इसके। अच्छा, स्क्वायर में दोनों डायगनल इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में एक डायगनल बड़ा होता है और एक डायगनल छोटा होता है, ठीक है ना। तो मैं यूं करता हूं कि इसके मैं डायगनल ड्रॉ कर लेता हूं डिफरेंट कलर्स के अंदर। तो ये इसका बड़ा वाला डायगनल है और ये वाला इसका छोटा डायगनल है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों डायगनल एक दूसरे को हाफ कर देते हैं। तो एक 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, और दूसरा 24 है तो वो 12 हो जाएगा। इधर भी 12 हो जाएगा और इधर भी 12 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं स्टार लगा रहा हूं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज the student who knows the properties of rhombus can solve this question easily, and the person who does not know the properties of rhombus will not be able to solve this question. तो rhombus की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं। और नंबर 2 बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगाऊं बताने आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि जो इसके डायगनल्स होते हैं उनके बीच में एंगल 90 बनता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके डायगनल्स के बीच में एंगल जो बनता है वो 90 बनता है। तो इट मींस दैट हमारे पास 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, 4। अब आपकी मर्जी है क्या करना। हमने करना है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड की लेंथ निकालिए। तो टेक एनी राइट एंगल ट्राइंगल, उस पर पैथागोरस लगा के आप तो ये फाइंड करें। ये सारी साइड्स की इक्वल होती हैं, रम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो कोई सी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, उस पर पैथागोरस लगाएं और फाइंड। तो बेटा अच्छा मुझे कोई बताएगा विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर इसकी लेंथ कितनी आएगी?
मैंने बताया था आप लोगों को 5 12 ये कितना होएगा 13 होएगा। पिथागोरियन ट्रिपल मैंने आप आई टोल्ड यू पिथागोरियन ट्रिपल 3 4 5 एक होता है और एक होता है 5 12 एंड 13। तो अगर आपको ये याद रहे ना तो ये समटाइम बड़े हेल्पफुल होते हैं। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, इसका आंसर पक्का 13 होएगा, चेक करके देख लो। ये 13 आंसर 13 ही आंसर है। तो देखें, जस्ट रिमेंबरिंग दीज पिथागोरियन ट्रिपल समटाइम वेरी हेल्पफुल। दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इट इज डिलीशियस क्वेश्चन। इसमें हमें वी हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ रम्बस कि उसके डायगोनल्स में एंगल 90 बनता है और जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल कट, एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं और इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो जल्दी इस बार प्रवेश पढ़े क्वेश्चन को बेटा। Two spotlights P and Q are mounted on a vertical pole AB. Light beams from P and Q shine to 2 points on the ground, H and K, respectively. Given that PQ is 12.7 meters, KB is equal to 17.2 meters, PH is equal to 39 meters, and QK is equal to 21 meters, find BQ, the height above the ground at which the spotlight Q is mounted, HK, the distance between the projections of the light beams. ओके बेटा, ये देखिए ना, हमने कभी जाए ना कहीं किसी भी तो डू दिस क्वेश्चन एट होम Okay, sir. एंड लेट मी नो टुमारो के आपसे ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।